The music is loud and the spirits are high as the community rejoices. But this isn't a wedding procession. Today the community has gathered to welcome the Bal Vivah Mukti Rath to their village. A journey not to celebrate a marriage but to ensure a childhood is never cut short by one. This is the Bal Vivah Mukti Rath, not just a vehicle but a mission on wheels. This flagship force is spearheading the fight against child marriage by travelling across the heart of India to the most remote and underserved communities, spreading awareness to end this heinous crime. This caravan is the highlight of the ongoing 100 Days Intensive Awareness Campaign, which is part of the massive Bal Vivah Mukt Bharat initiative. For close to a month now, more than 400 Raths have been crisscrossing the length and breadth of the country. The scale is staggering, with the Rath projected to reach 439 districts in 25 states, galvanizing lakhs of people across its journey. Launched on the 4th of December last year by the Government of India, the 100 Days Intensive Awareness Campaign calls upon citizens, institutions and community leaders across the nation to join the movement and reaffirm India's commitment to building a Bal Vivah Mukt Bharat or child marriage-free India. This campaign by the Ministry of Women and Child Development is not merely symbolic. It is backed by the district-level resources and implementation support to drive prevention of child marriage at scale. At the heart of this national momentum has been Just Rights for Children (JRC). Since the inception of BDMB, JRC has been an instrumental civil society partner, strengthening strategy, mobilization, and on-ground execution. Bal Vivah Mukti Rath is in fact JRC's flagship mass mobilization campaign, which is now also the heartbeat of the 100 Days campaign, playing a pivotal role in driving awareness across states, districts and grassroots communities. ये जस्ट राइट्स एक एनजीओ है, संस्था है। ये लोग पूरे देश में बाल विवाह मुक्त और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए अवेयरनेस का कार्यक्रम करते हैं और आज एक वाहन इसके प्रचार प्रसार के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। अब तो नहीं के बराबर है, हमारा बालोद जिला आज बाल विवाह मुक्त जिला हो गया है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ अगर हम राष्ट्रीय दर देखें तो 23.3% है, छत्तीसगढ़ में वहीं 12% है। छत्तीसगढ़ पूरे बाल विवाह को खत्म करने का एक प्रणेता बन सकता है, लीडरशिप ले सकता है। मुख्यमंत्री जी ने आज ये करके दिखाया और अब हमें इस पूरे आंदोलन को बहुत ही इंटेंसिवली CMPOs को जोड़ के, पंचायतों को जोड़ के, हमारे बच्चियों को जोड़ के, हमारे सारे साथियों को जोड़ के इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। The Bal Vivah Mukti Rath is a catalyst for change at every level of society. It engages with not only communities and families but also state governments and district administrators, mobilizing the machinery of the state and empowering the all-important Child Marriage Prohibition Officer to turn reporting into action. To cope with India's vast geography, the Rath takes different forms. There is a four-wheeler Rath to operate in district headquarters and on major roads with good accessibility. A motorcycle Rath to reach panchayats with limited accessibility, and a bicycle caravan to reach remote villages, ensuring the message of the movement reaches the very last mile. इसके ऊपर अभियान आज जारी कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, गांव-गांव में जाएंगे, प्रचार करेंगे कि इस प्रकार की कुरीति को दूर करो। छोटे बच्चों का विवाह करना उनकी शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर उनके लिए वो ठीक नहीं है। Bal Vivah Mukti Rath has been quite literally driving the 100 Days campaign, carrying awareness,
deep insight of villages and towns to mobilize communities engaging panchayats, activating local administrations, and ensuring that law enforcement gets implemented in our social protection systems. It moved the campaign from intent to measurable outcomes. Today, in Ward number 8, we have inaugurated and we have commenced a very, a very sensitive program, and a program very close to our hearts. The awareness has to be incorporated and percolated to the last person, the person who does not have any idea about this issue. Awareness has to go there. बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए, बाल विवाह को, क्योंकि ये एक अपराध है, इसको ख़त्म करने के लिए जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन पूरे देश भर में सिविल सोसाइटी के साथ काम करते हैं। और बंगाल के अंदर आज हम कोलकाता के अंदर बितान के साथ और हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट्स में 24 पार्टनर्स के साथ ये जो हम यहाँ काम कर रहे हैं बंगाल में। और हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि बंगाल को बाल विवाह मुक्त बंगाल बनाया जाए और उसको एक सामाजिक बुराई की तरह ना देखकर इसको एक अपराध मानकर, और जो भी उसको कराते हैं और जो भी उसमें भाग लेते हैं उन सभी को सज़ा देकर इस प्रथा को ख़त्म करा जाए और लड़कियों को पढ़ाई का और उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। बाल विवाह को जड़ से ख़त्म करने का सबसे अच्छा उपाय है कि उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को पता रहे कि बाल विवाह करने से जो आपकी छोटी बच्ची है खासकर, उसका बचपन भी ख़त्म हो जाता है, उसकी जवानी भी ख़त्म हो जाती है और बेसिकली उसकी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है। In state after state and district after district, these ruts are igniting a nationwide conversation. They have been creating a buzz wherever they travel. They carry a vital message and law has a face and every district has a guardian. Enter the Child Marriage Prohibition Officer or CMPO, a dedicated sentinel tasked with the triple mission of prevention, protection and the relentless prosecution of those who break the law. Meet Savita Rana, a CMPO from Karnal in Haryana. For her, every handshake and every conversation is a chance to change someone's mind, because CMPOs like Savita often serve the very communities they call home. They possess an advantage, the trust and the opportunity to reach families before it's too late. Savita and other CMPOs are the frontline in fighting child marriage, sensitizing the community and turning awareness into rapid local action. हरियाणा की बात करूंगी मैं, तो यहाँ पे 23 जिले हैं। चाइल्ड मैरिज रुकवाने में जो आदेश पारित कराने हैं वो CMPO ही कराती है, काउंसलिंग करनी वो भी CMPO के द्वारा ही कराई जाती है। मेरे पास जो ही कंप्लेंट आएगी, कोई भी कंप्लेंट कर सकता है बाल विवाह से संबंधित, तो उसमें हम मौके पे जाते हैं, मौके पे देखते हैं उनके जन्म प्रमाण पत्र और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उससे हम आयु प्रमाण पत्र असेस करते हैं। हम उसको यदि शादी नहीं हुई है तो हम उसको काउंसलिंग के द्वारा रुकवाते हैं, जो कि हम उसके परिवार को थाने में लेके आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त सारे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करके उनको हम गाइड करते हैं 2006 के कानून के तहत कि आपने तब तक शादी नहीं करनी जब तक कि लड़की 18 वर्ष और लड़का 21 वर्ष का नहीं हो जाता। तो उसके लिए हम एक एफिडेविट भी लेते हैं और हम इसमें इंजेक्शन ऑर्डर भी ले लेते हैं कोर्ट के द्वारा, जिसमें कि हम उसको बाउंड कर देते हैं कि जिससे कि वो शादी न कर सके। Savita's team is often the first respondent to a tip-off received about cases in her district, acting as an immediate link between the individual in need of urgent action and the help that arrives from the administration. For this reason, they work in close contact with the police, the local NGO, the local child welfare committee, sarpanches and Anganwadi workers, so that the law can be invoked and implemented at every step of dealing with this crime. अवेयरनेस हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, जिससे कि कानून का तभी फ़ायदा है कि जब गांव तक पहुंचे और पब्लिक तक पहुंचे, क्योंकि ये कागज़ों में ही बन के रह जाते हैं। कई बार क्या है कि कागज़ों तक रह जाते हैं, किसी को समस्या आती है उनको पता ही नहीं होता कानून के बारे में, इसलिए हम ज़्यादातर गाँव में पब्लिसिटी करते हैं जिससे कि उस कानून का फ़ायदा उन लड़कियों तक पहुँच सके। मैं 2005 कानून के तहत, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत
और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्य करती हूँ, जिसमें कि हमारी पब्लिक डीलिंग रहती है। कंप्लेंट हमारे को एसपी साहब से आती है, डीसी से आती है, पब्लिक वैसे भी दे देती है, तो हम उनको दोनों परिवारों को बुला के काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल सेल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन का नाम दिया गया हमारे सेल को, जो कि हम महिला थाने में बैठते हैं। परंतु मैं महिला बाल विकास विभाग से हूँ, परंतु मेरा काम जो है वो पुलिस की भी मुझे ज़रूरत पड़ती है और कोर्ट की भी, इसलिए 23 के 23 जिलों पे प्रोटेक्शन ऑफिसर महिला थाने में बिठाई गई हैं। तो काउंसलिंग भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। 3 तरह से हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं पार्टी को, व्यक्तिगत तौर पे, सामूहिक तौर पे और पारिवारिक तौर पे, जिससे कि समस्या का हल निकल सके। देखिए, जो हमें सीएमपीओ से और एनजीओ से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बाल विवाह के रिगार्डिंग, तो उसमें हमारा ये रहता है कि इंफॉर्मेशन मिलते ही हम मौके पे पहुंचते हैं और मौके पे पहुंच के हम ये देखते हैं कि कोई वहाँ पे जो शादी चल रही है उसमें भी कोई ऐसा मतलब अशांति वाला माहौल ना हो। तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये रहता है कि शांति अच्छे से बनी रहे और किसी भी हिंसा की कोई गतिविधि ना हो। तो उन सब चीजों के लिए हमें काफी ध्यान देना पड़ता है और पुलिस का मेन रोल यही रहता है कि मतलब शांतिपूर्ण सारा काम हो और बाल विभाग की अगर कोई इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो उसको मतलब बच्चे की भी हमें डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ती है कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है या कोई फेक इन्फॉर्मेशन है। तो ये पुलिस का अहम रोल रहता है कि उस टाइम हम अच्छे से वो इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखें कि भाई वो सही है। The ongoing 100 Days campaign has been a critical catalyst in this direction of energizing communities and bringing momentum to collective action. During the time that the campaign has been running, many child marriages have been prevented from happening thanks to the swift intervention of the different teams. MDD जो NGO है उनके द्वारा ये रथ दिया गया हम लोगों को, जिसमें कि हम लोग भी और इनका स्टाफ भी MDD बाल भवन का गांव-गांव में जाके ये अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि कोई भी बाल विवाह नहीं होने देना, क्योंकि इसमें सॉन्ग वगैरह है जिससे कि पब्लिक वैसे ही आ जाती है, तो उसको सुनने के लिए पब्लिक वैसे आ जाती है, तो उससे पता चलता है कि हाँ ये बाल विवाह रोकने के लिए मुहिम चली हुई है। बहुत जागरूक हुए हैं। पॉलिटिशियंस के अलावा हमने इसमें जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको भी जोड़ा, उसके अलावा जो CMPOs हैं उनको अपने साथ लिया। जो वो काम कर रहे थे हमने उनको सिर्फ फैसिलिटेट किया, उससे उनको नए नए आइडियाज़ आए, उनकी जो डे टू डे की वर्किंग है उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव किया गया इस अभियान से। हमें लगभग अभी इस बाल विवाह रथ जो है 25 दिन हो गए हैं इसको चलाते हुए, बाल विवाह मुक्ति रथ को। और इसी दौरान जो हमारे सामने हर ज़िले के अंदर 3 से 4 केसेस ऐसे आए हैं जो कि बाल विवाह मुक्ति रथ के देखने के बाद उससे मोटिवेट होकर उनकी रिपोर्टिंग आई है हमारे सामने। तो इसका ये सीधा सीधा एक उदाहरण है कि उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है सोसाइटी पे। After the break, we travel to Odisha, where another Bal Vivah Mukti Rath is traveling through the streets of Bhubaneswar. Across 25 states and hundreds of districts, a massive fleet of over 400 caravans is delivering a single powerful message. Child marriage is a heinous crime that robs children of their childhood. This is the Bal Vivah Mukt Bharat initiative in full throttle. From UP and Haryana, we now travel to Odisha. In Bhubaneswar, the Bal Vivah Mukti Rath has now spent almost 4 hours on the road show, moving through broad roads and narrow alleys. A few hours ago, most people didn't seem to know what this caravan had entered their neighborhood for, but now a curiosity has turned to conviction. ସେଇଟା ବାପା ମା ମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ ଜିନିଷ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ପଇସା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ବି ମ୍ୟାରେଜ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେଟା ବି ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଦଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ଫଳରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର
अवेयरनेस प्रोग्राम होची फील्ड साई माध्यम रे अवेयरनेस प्रोग्राम हेले आमे जो महिला माने अछंदी किबा जो माने न जानि पारुचंदी साई माध्यम रे हेले से माने सब जिंस जानि परिबे। आ आज ये जो रुचिका अनुष्ठान तरफ जो स्वागत योग्य कार्य करा होची एटा बड़ भलो काम करा होची तेणु कि जो बाल्य विवाह उच्छेदटा को जो मंदिर प्रत्येक जगह जो करा होची बाल्य विवाह एटा को स्वागत योग्य करी समस्त सहयोग रे एटा बंद करा गले एटा बहुत आगु को आगेबो। हमर आज बड़मुंडा गोदाम साई रे हम आज बाल्य विवाह मुक्त भारत केमती आमे समस्त से विषय जानी कि आमे समस्त सचेतन हवा से विषय आमर एठी प्रोग्राम करूछु एवं मोर 49 वार्ड रे निश्चित भाव में बाल्य विवाह प्रथा को दृढ़ भाव में दमन करी। निश्चित यहाँ गोटे भल पदक्षेप जहाँ आम एरिया रे मीटिंग हो नाला रुचिका को अशेष धन्यवाद देवी जहाँ आज आम कारगिल प्रोग्राम टी करागला बाल्य विवाह केमती बंद हम तो आज आपण मैंने निजे देखिपे केम शह शह महिला मैंने आज ये जोग देते मो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी जोग देते से आउ थे मु रुचिकार समस्त जो मैंने आसी कर्मी मैंने समस्त अशेष धन्यवाद देवी गोटे भल पदक्षेप निम लोक मैंने भी जहाँ किसी जन आमर पिला छोट छोट पिला जो मैंने कॉलेज पढ़ते सी भी यापर कहते मो माँ मैंने भी कहते एमती यहाँ जब आगू को नियाजिब प्रति एरिया रे को प्रचार प्रसार करा निश्चिंत यार ब्रेक लगे भारत वर्ष रे निश्चिंत यहाँ मुक्त हो। Back in Haryana, the CMPO has organized a field activity involving the different stakeholders in the fight against child marriage. Among them is Nisha, an Anganwadi worker whose efforts have been helping prevent child marriage in her neighborhood. मैम बीच में हमारी ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग देते हैं हमारे को, तो हमें अवेयर करते हैं कैसे हमें अपने फील्ड में ये पता लगाना होता है, या हम निरीक्षण भी करते रहते हैं कि कोई जैसे बाल विवाह ना हो, या अगर कोई इससे रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है तो वो हम मैडम को प्रोवाइड कराते हैं। और हम बीच बीच में मीटिंग्स लेते हैं अपने एरिया में, जिसमें हम अवेयर करते हैं पेरेंट्स को कि वो लड़कियों की शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान दें, उनकी पढ़ाई ना छुड़वाएं, क्योंकि स्टडी बहुत ज़रूरी है एक अच्छी बेस के लिए। और पेरेंट्स सुनते हैं और हमारे को फॉलो भी करते हैं, बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि बेसिकली हम उन्हीं के बीच में होते हैं, तो हम उनके जो पारिवारिक स्थिति है हम उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। हम वो हमारे ऑब्जर्वेशन में ही रहते हैं, तो हमें पता रहता है कि अगर कोई बच्ची स्कूल नहीं जा रही है तो क्यों नहीं जा रही है, तो अगर वो मैरिज से भी, क्योंकि हमारे पास डाटा होता है, सारा डेट ऑफ बर्थ होती है। Poonam is one of the lakhs of Anganwadi workers leading this charge at the grassroots level. By connecting the dots between child marriage and the health crisis it creates, she is working on transforming her community from the inside out. Her work is a relentless cycle of engagement, visiting schools, knocking on doors, going house to house, trying to reach as many women and girls as possible. इसके लिए हम अपनी आंगनवाड़ी में मीटिंग्स वगैरह लेते हैं। जैसे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसके बारे में, तो लोग इसमें जागरूक भी हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेडीज़ हैं, लड़कियां अवेयर हो रही हैं। और MDD ऑफ इंडिया से जो हमारे पास आते हैं वर्कर्स, वो भी हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो भी घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं आंगनवाड़ी में बैठ के। और इससे ये रिजल्ट निकल रहा है कि लोग थोड़े डर भी गए हैं कि बाल विवाह नहीं होने देना, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। जो ये बाल विवाह मुक्ति रथ जो चलाया जा रहा था, तो उसमें ये है कि लोगों में बड़ी जागरूकता आई है। लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बड़े अच्छे से समझ रहे हैं किस चीज़ के ऊपर है ये, और अवेयर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोग। अब घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं, तो रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा दे रहे हैं लोग। A crisis as enormous as child marriage, entrenched in our society for centuries, held in place by the power of tradition and social norms, needs an even stronger force to fight it. An ecosystem so strong that it is built brick by brick by the efforts of each of these stakeholders. A crime as deeply ingrained as this takes decades, even centuries, to be uprooted from within the consciousness of communities, a feat being achieved in front of our eyes today through the efforts of everybody involved in this collective fight.
इस अभियान को आगे लेके जाने के लिए एनजीओ को हमेशा ही हमारे स्टेक होल्डर्स की नीड रहेगी और है भी है। ये जॉइंट एफर्ट है क्योंकि ये इतनी बड़ी कुरीति है कि इसको एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना। यहाँ सभी डिपार्टमेंट्स का, सभी स्टेक होल्डर्स का जो बोलते हैं ना कि सपोर्ट है, समावेश करके हम लोग एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यहाँ डीसीपीओ का अपना रोल है, सीएमपीओ का अपना रोल है, एनजीओ का अपना रोल है। एक अकेली लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब हमारे सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करते हैं, जब बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है तो उसको तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। इस तरीके से अगर हम मिलकर काम करते हैं तो इसका यही असर होगा कि हम जो बाल विवाह मुक्त भारत हमारा अभियान है उसको अचीव करना है और हम उसको अचीव कर रहेंगे। ये तो आती है, दिखते तो बहुत आती हैं फील्ड में, क्योंकि हम लोग सरपंच को और आंगनवाड़ी को लेते हैं जो गांव के मेन होते हैं, उनके द्वारा वो हम लोग उनको गाइड करते हैं। क्या है कि हमारा पंचायतों के साथ चले हुआ है, तो हमने क्या किया कि वीडियो सभी ब्लॉक से हमने वीडियो को लेटर लिखे और उनके द्वारा हम गांव के सरपंच, ग्राम सचिव और अन्य पब्लिक को बुला के वीडियो ऑफिस में ही उनको अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनको गांव का लेवल पता है, गांव सतर पे वो रहते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तो हमारा मेन मकसद है, बच्चों को पेश करते हैं हम लोग। जैसे कि एमडीडी बाल भवन है, हमारे पास दूसरी एनजीओ है 2-3, तो हम उनको भी साथ लेके चलते हैं। जैसे भी है हम उनके साथ ये नहीं सोचते कि हम तो सरकारी मुलाजिम हैं, हम क्यों करें, नो, ऐसे नहीं है। हम उन्हीं के साथ मिलके काम कर रहे हैं जिससे कि पब्लिक तक हमारा मैसेज जा सके, क्योंकि मैं अकेली नहीं कर पाऊँगी जब तक कि मेरे पास एनजीओ नहीं है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी नहीं है, या मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, या अन्य डिपार्टमेंट नहीं है। सभी को हम अवेयर करते हैं और उनसे मिलते भी हैं, उनको बताते भी हैं कानून के बारे में, ऑफिस में जाके उनसे बातचीत भी करते हैं, जिससे कि हम बाल विवाह मुक्त भारत को बना सकें। Since April 2023, close to 4.8 lakh child marriages have been prevented and more than 34 lakh individuals have been linked to social welfare schemes. This is the ultimate aim of concerted campaigns within the nationwide movement of Bal Vivah Mukt Bharat at large, to mobilize people at the grassroots level so that sustainable change follows. The 100 Days campaign under BDMB is not just a time-bound drive. It signals a national shift from reactive rescue to proactive prevention. Through the Bal Vivah Mukti Raths, Just Rights for Children has ensured that the campaign does not remain confined only to bureaucratic paperwork, but more importantly can transform into a mass people's movement. This is the reason why the story of this movement is not just about stopping child marriages. It is about building a system where communities are vigilant, law is enforceable, girls stay in school, families are economically supported, prevention becomes the norm, not the exception, and children can simply be children.